Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we are going to start our lecture number 14, which is all about strategy, analysis and choice. Initially, I would like to give you the lecture outline. The lecture outline says that the nature of strategy, analysis and choice would become under our discussion inshallah in this lecture. Then we would be having a detailed discussion on a comprehensive strategy formulation framework. That comprehensive strategy formulation framework has its 3 stages. The first stage is available with the title of input stage. This is what we will be discussing in complete detail inshallah. Then the second stage of this particular comprehensive framework for the strategy, analysis and choice is available with the title of the matching stage. Then the decision stage. We would be discussing cultural aspects of strategy, choice, and again along with those few main topics, the politics of strategy, choice and the role of board of directors will become under our discussion in our today's lecture. But as far as this particular title of strategy, analysis and choice is concerned, dear students, मैं आपको इसका एक quick brief and reasoning दे देता हूँ. अभी तक into the first stage of strategic management process, we have discussed this something that how to identify our strengths and weaknesses, how to find out our opportunities and threats, which we have done in our external assessment and external audit chapter. Then after that, we have discussed in complete detail the nature of long-term objectives which an organization used to formulate, और उन objectives को achieve करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी strategies available होती हैं. This is what which we have discussed in our last lecture, जिसमें हमें पता चला था कि हमारे पास 9 growth strategies हैं, 4 डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हैं. ये 9 ग्रोथ और 4 डिफेंसिव स्ट्रेटजीज वर टेकन फ्रॉम द माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज. और हमने ये बात एंड की थी कि आउट ऑफ दोज फ्यू अवेलेबल ग्रोथ एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजीज वी हैव टू डिसाइड which one as a particular strategy or as a set of strategies would be most suitable for you at that time as being a business organization for the achievement of your long-term objectives. So, हमारे आज का ये जो टॉपिक है स्ट्रेटजी, एनालिसिस एंड चॉइस का, इसमें हम आधा कंपोनेंट इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास आई हैं, इसको क्वांटिटेटिव बेसिस पे किस तरह इनका एनालिसिस किया जाता है और किस तरह दैट एनालिसिस वुड हैव मेक अस कम अप विद अ फाइनल चॉइस ऑफ आवर स्ट्रेटजी. Whether it's broke or not, fix it, make it better. This is an idea as far as the nature or the justification of the title of this particular slide is concerned. Strategy, analysis and choice. Not just products, but the whole company if necessary. आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की अगर लिमिटेशन रखी हुई है तो आप इसको और एक्सपेंड कर सकती हैं. You are even required to go for the improvement of your overall firm as a business organization. Strategy, analysis and choice actually आपको इस साइड पे ना सिर्फ सोचने के लिए एक फूड फॉर थॉट देता है, बल्कि it also provides you with the actual actions which you have to implement for the improvement of not only your products which you are offering as a business organization, but also for the improvement of your firm as a business organization on longer run basis.
This was said by Bill Saporito. And along with that, dear students, this strategy analysis and choice focuses on strategic analysis and choice largely involves making subjective decisions. हमने इसमें क्या करना होता है? ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड चॉइस के जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग सब्जेक्टिव डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यू हैव टू कलेक्ट एंड सेलेक्ट, और in other words to formulate for the pursuance of your long-term objectives being an organization, dear students. Dear students, this strategy analysis and choice tells us about the nature of strategy analysis and choice in this quick review of the strategy analysis and choice aspect of the study of strategy formulation stage. It helps us in establishing our long-term objectives. It will be helpful for the generation of alternative strategies. It will again be providing you an objective information on the basis of which you would have been taking subjective decisions. Dear students, this strategy analysis and choice will be providing you with the nature of this particular aspect of the strategic management process's first stage. The nature of strategy analysis and choice will not only be providing you with the foundation steps and the platform from where you would have been going for the establishment of long-term objectives of your organization. This strategy analysis and choice will also be helping you in generating available alternative strategies for your organization. इसके साथ साथ dear students, ये particular strategy analysis and choice का जो topic है, ये आपको हेल्प आउट करता है इन सेलेक्टिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज टू बी परसूड बाय यू, एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड यू विद द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज से यहाँ मेरी क्या मुराद है? Alternative strategies are those business or functional strategies which we have discussed in our last lecture under the name of growth group of strategies or defensive group of strategies. ये हमारे पास alternative choice of strategies हैं. हम जिस सिचुएशन में उस वक्त एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, उसको सामने रख के हम अपनी स्ट्रेटजी को चूज करते हैं. ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं, दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, objectives of the organization. Then external audit contributes a lot in making you finalize your choice of strategy. इंटरनल ऑडिट की भी कंट्रीब्यूशन उतनी ही सिग्निफिकेंट है आपकी अवेलेबल स्ट्रेटजीज को एनालाइज करने में और फाइनली एक चॉइस मेकअप करने में फॉर योर स्ट्रेटजीज, और ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज आप अपना प्रीवियस ट्रेंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने फोकस में रखते हैं कि मेरी जो पास्ट सक्सेस स्टोरी है दैट इज बेस्ड अपॉन दी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्ट्रेटजीज. तभी इसी बेसिस पे मैं इस सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रेटजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए चूज कर रहा हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तमाम स्टेप हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ योर स्ट्रेटजी चॉइस. यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की जो स्टेज 1 है, विच इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन,
इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करने के लिए हमें इन सर्टेन स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करना होता है, इस पे एक ओपन थिंकिंग की ज़रूरत होती है, एंड फाइनली इट प्रोवाइड्स यू विद द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मेकिंग ऑफ योर चॉइस बीइंग फाइनलाइज्ड एज फार एज ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड. So dear students, this strategy analysis and choice requires the extensive participation in generating alternative strategy should be broad. कि जो भी लोग आपके स्ट्रेटजी चूज करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को सर्टन करना इज गोइंग टू बी इसेंशियल if you really would like to come up with a successful, with a result oriented, with an efficient choice of strategy. और ये जो strategy analysis and choice है, इसको करने के लिए dear students हमारे पास strategy formulation analytical framework है. इस strategy formulation analytical framework को कुछ experts of management comprehensive framework for strategy generation, evaluation and selection के टाइटल से भी डिस्कस करती हैं. इस comprehensive framework में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज और स्टेज 1 is available with the title of the input stage. Stage 2 of this comprehensive framework of strategy generation, evaluation and selection is available with the title of the matching stage, and the third and the final stage of this particular framework is available with the title of the decision stage. हम इन तमाम स्टेजेस को जो कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क में दी गई हुई हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टेज 1, as the title speaks for itself, is given in the name of the input stage. Dear students, input वो चीज होती है जो आपको किसी प्रोसेस को रन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और अभी तक हमने बिजनेस पॉलिसी के सब्जेक्ट को समझने के लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस रन की है, उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज में क्या क्या इनपुट इस वक्त तक अवेलेबल है. हमारे पास इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एज एन इनपुट अवेलेबल है. आपको याद होगा कि हमने ये इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमारे इंटरनल असेसमेंट और इंटरनल ऑडिट के टॉपिक की स्टडी की फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे परफॉर्म किया था. ये एक 5 स्टेप्स का मैट्रिक्स था जिसमें हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या क्रिटिकल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चला था. To whom we have assigned weightages in second step of this matrix, to whom we have assigned ratings into the third step of this internal factor evaluation matrix, और इस स्टेप 2 और स्टेप 3 की मल्टीप्लिकेशन से we have collected at that time the fourth step of this internal factor evaluation matrix, जो कि weighted score के टाइटल से अवेलेबल था. और डियर स्टूडेंट्स, इस इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को आपको याद होगा हमने इसका 5th और फाइनल स्टेप पढ़ा था, सम वेटेड स्कोर, जिसमें हम अपने वेटेड स्कोर्स की समेशन ले लेते थे. इसके साथ साथ इस इनपुट स्टेज में हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, and this is that matrix which we have performed at the maturity of our particular topic of external assessment and external audit, जिसमें हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैक्रो फोर्सेस की स्टडी को सामने रखते हुए उनमें जो चेंजेस आ रही थी उनको एनालाइज किया था. उनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हमने अपनी विजिबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में कन्वर्ट किया था,
और इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के जो आखिरी 4 स्टेप्स थे वही आखिरी 4 स्टेप एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के भी थे। यानी कि EFE मैट्रिक्स में भी फर्स्ट स्टेप की एक्सटर्नल सक्सेस फैक्टर्स जिसमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ गई थी उनको हमने स्टेप 2 में वेटेजेस दे दिए थे। स्टेप 3 में वी हैव असाइंड रेटिंग्स टू दोज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्टेप 4 वेटेड स्कोर था और स्टेप 5 हमारा सम वेटेड स्कोर था। और आपको याद होगा इसी एक्सटर्नल ऑडिट में हमारा एक और मैट्रिक्स भी परफॉर्म हुआ था विच वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स CPM। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो 3 मैट्रिसेस अपने प्रीवियस पर्टिकुलर स्टेप्स में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हुए हैं। ये यहाँ पे इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजी जनरेशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन में इनपुट स्टेज के तौर पे यूज होंगे। और जब हम अपनी ये इनपुट स्टेज को कंप्लीट कर चुकी हैं हम आ जाएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन पे। ये जो इनपुट स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या बेनिफिट है, how this will become meaningful and logical for the organization to keep them involved as the first stage of comprehensive framework into making the choice of your strategy being finalized on the basis of some subjective and objective information. The first benefit of this input stage is this, that it provides you with the basic input information for the matching and decision stage matrices कि आपने इस comprehensive framework की स्टेज 2 में जो मैचिंग स्टेज के टाइटल से अवेलेबल है और स्टेज 3 में जो डिसीजन स्टेज के टाइटल से अवेलेबल है उन दोनों स्टेजेस की परफॉर्मेंस के लिए ये स्टेज 1 आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और स्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। Then it requires strategists to quantify subjectively early in the process. इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रेटेजिस्ट को ये चीज रियलाइज करा देती है कि वो अपने प्रोसेस के स्टार्ट में ही ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी को सामने लेके चलता है ताकि वो किसी ऐसी पॉसिबिलिटी के चांस को मिनिमाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी मिस्टेक और इन द फॉर्म ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी ब्लंडर which would have been serving as a major hurdle into the pursuance of the long-term objectives of the organization at some point in time. It will be providing you good intuitive judgment which is always be needed by the organization. Dear students, मैंने शायद आपको पहले भी अपने किसी लेक्चर में इस बात के बारे में एक इंटीमेशन दी थी कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है in which we have to get involved into industry analysis, or in other words in which we have to go for the strategic planning which is also available with the title of scenario planning. जब हम अपना सिनेरियो प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं या जब भी हम इंडस्ट्री एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं, हमारे पास हमारी प्रेजेंट की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन हमारे पास इससे पहले इन द फॉर्म ऑफ मिशन एंड विजन कुछ हमारे पास्ट की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस पास्ट और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होती हैं वो इंट्यूशंस को यूज करते हैं, वो अपनी फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन की कैपेसिटीज और क्वालिटीज को जेर इस्तेमाल लाके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती हैं विच विल बिकम अवेलेबल टू यू थ्रू दैट इनपुट स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेज of this strategic management processes strategy formulation
analysis, evaluation and selection particular framework is related to the matching stage. सेकेंड स्टेज में हम मैचिंग स्टेज है और मैचिंग स्टेज में हमारे पास 5 मैट्रिसेस अवेलेबल हैं डियर स्टूडेंट्स. पहला मैट्रिक्स जो इसमें हमने परफॉर्म करना है दैट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ टोज मैट्रिक्स. सेकेंड मैट्रिक्स इज अवेलेबल विद द स्पेस मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड ऑफ स्पेस है here it stands for strategic position and action evaluation matrix. Then we have this third Boston Consulting Group matrix. Then we have fourth matrix which is available with the title of internal external matrix जो कि IE matrix भी कहलाता है. And the fifth and the final matrix of this particular matching stage which is the second stage of the comprehensive framework of strategy generation, evaluation and selection framework. इसका जो second stage का 5वां और आखिरी matrix है dear student, it is available with the title of grand strategy matrix. Dear students, यहाँ पे before going into our further discussions on these 5 different matrices, initially I would like to give you the justification of the title of this second stage. Second stage को हमने matching stage के title से पढ़ा. इसको matching हम क्यों कहते हैं? Because always remember डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टेटस था, जो एक्सटर्नल ऑडिट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमने EFE मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई की थी, वी हैव टू मैच देम with the organization's internal strengths and weaknesses. यहाँ पे मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये है, इन अदर वर्ड्स कि इंटरनल एनवायरनमेंट का जो हमारा स्टेटस है उसको हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मेजर इंडिकेटर्स हैं उनके साथ मैच कर देना है. And this matching would have been providing you with a very basic and meaningful foundation for your this strategy analysis and choice. So this is how and this is why experts have given the title of matching to this particular second stage of comprehensive framework for the strategy generation, evaluation and selection. And now dear students, out of the 5 matrices of this second stage of matching stage, we will be discussing these matrices one by one. मैचिंग स्टेज जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मैं आपको बात अभी बता रहा था, इट विल एक्चुअली सर्व यू दिस पर्पस टू हैव अ मैच बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल रिसोर्सेज and skills and the opportunities and risks created by its external factors. जो कि बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी कि इसको मैचिंग स्टेज इसलिए कहते हैं कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इन बिटवीन एक मैच क्रिएट कर देते हैं. This match is going to serve certain purposes here. Matching key factors to formulate alternative strategies as it has been given quite clearly. इसमें क्या होता है dear students, की इंटरनल फैक्टर को हमने की एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मैच कर देना है और जिसके लिए हमारे पास एट एज एन एंड प्रोडक्ट एक रिजल्टेंट स्ट्रेटजी आ जाती है. जैसा कि इस स्लाइड में आपको कुछ मैचेस करके बताया जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रिजल्टेंट स्ट्रेटजी किस वजह से आई. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का की इंटरनल फैक्टर हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि इट इज अवेलेबल विद द एक्सेस वर्किंग कैपेसिटी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इन एक्सेस वर्किंग कैपेसिटी अवेलेबल है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है.
इसको हमने किस एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मैच कर दिया? 20% एनुअल ग्रोथ इन द सेल फोन इंडस्ट्री। ये जो सेल फोन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 20% ग्रोथ का मार्जिन अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर को जब हमने इस एक्सटर्नल फैक्टर के साथ मैच किया तो इट विल हैव बीन प्रोवाइडिंग यू विद एन एक्चुअल रिजल्टेंट स्ट्रेटजी टू एक्वायर सेल फोन इनकॉर्पोरेशंस। देन नंबर 2, इनसफिशिएंट कैपेसिटी। इस केस में हम पहले वाले इंटरनल फैक्टर की अपोजिट साइड ऑफ द पिक्चर को देख रहे हैं कि आपके पास वीकनेस है, यू आर फेसिंग द इशू एंड द वीकनेस ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी। इसको हमने किस एक्सटर्नल फैक्टर से के साथ मैच कर देना है? यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्लियरली, एग्जिट ऑफ 2 मेजर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री में से जो 2 मेन फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे वो एग्जिट कर गई हैं। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब हमने इस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को मैच किया तो रिजल्टेंट स्ट्रेटेजी में हमारे पास क्या सूरत हाल हो जाएगी? ही सजेस्ट परसू हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बाय बाइंग कॉम्पिटिटर्स फैसिलिटीज, कि आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को इस सूरत हाल में फॉर्मुलेट करके एग्जीक्यूट कर दें। किस तरह के बाय कर लें जो आपका मेन कॉम्पिटिटर था उसकी तमाम फैसिलिटीज को, बिकॉज वो आपके उस कंपटीशन को क्विट करके किसी और इंडस्ट्री में जा रहा है। एक और हम मैच देख लेते हैं। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल विद द स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, it will be taken as your strength. You have to make a match with the external factor which has been given here in the form of decreasing number of young adults, which is a threat. When we have made a match between these two internal and external factor, it will be providing you with one resultant strategy which is given here like that: develop new products for older adults. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको वो रिजल्टेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे सजेस्ट कर रहा है। एंड अदर मैच इज पुअर एम्प्लॉय मोरल। अगर खुदा न खास्ता आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पुअर मोरल की सिचुएशन से पास ऑन हो रही हैं, वो डिजेक्टेड हैं, हार्ट ब्रोकन है, ये आपकी वीकनेस है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या आपको ऑफर कर रहा है? स्ट्रॉन्ग यूनियन एक्टिविटी। इस सूरत में एक वीकनेस का एक थ्रेट के साथ जब आपने मैच किया तो क्या रिजल्टेंट स्ट्रेटेजी ये आपको शो कर रहा है? डेवलप अ न्यू एम्प्लॉय बेनिफिट्स पैकेज, कि आप रीस्ट्रक्चरिंग करें, रीट्रेंचमेंट करें। एक रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू एम्प्लॉयज के बेनिफिट का एक नया पैकेज लेके आए विच वुड बी टर्निंग द रिवर्स or bringing reversal to the declining trend of sales and profit volume of your organization. So this is how matching stage would have been justifying you some of its major components: TOWS matrix, SPACE matrix, BCG matrix, internal external matrix, grand strategy matrix हमारे मैचिंग स्टेज के मैट्रिसेस हैं। और इस मैचिंग स्टेज में डियर स्टूडेंट्स जो पहला हम मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, इट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ टोज मैट्रिक्स। टोज मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थ्रेट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट्स होती हैं, और इस मैट्रिक्स में हम प्ले करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट से जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। डियर स्टूडेंट्स, to develop this TOWS matrix, what we will have to do is to develop 4 types of strategies. जब हम इस टोज मैट्रिक्स के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का मैच कर रहे हैं तो हमारे पास 4 किस्म की स्ट्रेटजीज डेवलप हो जाएंगी, सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। This TOWS matrix will help you to develop 4 types of strategies, dear students.
Number 1, strengths and opportunities, SO strategies, weakness अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज, जिसमें आपके पास एक ऐसी सूरत हाल का आपको सामने है एज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप वीक हैं बट यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू। तीसरी सूरत हाल में जो हमारा मैच हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट्स। इंटरनल एनवायरनमेंट से हमने स्ट्रेंथ टेकअप कर ली, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इस सिनेरियो में हमने थ्रेट को टेकअप कर लिया, ST की सिचुएशन हमारे पास अवेलेबल आ गई। So dear students, in this last situation we will become available with the weakness, threat position and proposition, जिसमें हमारे पास W यानी कि weakness जो कि हमारा internal situation है, इसको हमने external environment के किस status से मैच किया which was available to us in the form of threat to organization। अब ये जो टोज मैट्रिक्स है इसकी प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स इस तरह चलती है। एसओ स्ट्रेटजीज जो हैं, जो हमारी पहली सूरत हाल प्रीवियस स्लाइड में डेवलप हुई थी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? यूज अ फर्म्स इंटरनल स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। ऑल सिंपल। आपके पास एक आइडियल विन विन सिचुएशन अवेलेबल है कि आप इंटरनली स्ट्रांग हैं और एक्सटर्नली आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट ले लेंगे। In second situation, you would have become available with WO weakness, opportunity, strategies। इसमें क्या होता है? An organization always try to pursue improving internal weakness by taking advantage of external opportunities। यहाँ पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, it makes you behave in a way, move in a way to improve your weakness and try to convert that weakness even into your strength। Then we were available with ST, strength and threat strategies, in which an organization used to go for using a firm's strength to avoid or to reduce the impact or the negative impact of the external threat। कि अगर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उस वक्त कुछ थ्रेट फेस करना पड़ रहा है तो आप उस थ्रेट का नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अव्वल तो उसको प्रोटेक्शन शील्ड के थ्रू जीरो कर लेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज या कम से कम हो। इसके लिए भी आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज करना पड़ती है। Final situation used to provide you with the weakness and the threat from the external environment, weakness from internal environment and threat from external environment। इस सूरत हाल में defensive tactics aimed at reducing internal weakness will become your focus and avoiding environmental threats। इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो हैं उसको मिनिमाइज कर सकें। Steps in developing this TOS matrix used to go like that, dear students। सबसे पहले आपने list the firm's key external opportunities। Number 2, list the key firm's key external threats। In step number 3, list the firm's key internal strength and then list the firm's key internal weaknesses। ये जो हमारा TOS मैट्रिक्स है इसमें हम फिर फर्दर स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं? मैच इंटरनल स्ट्रेंथ्स विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड रिकॉर्ड द रिजल्टेंट स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज एक्चुअली। Then after that, in step 6, what we have to do to match internal weaknesses with external opportunities and record the resultant weakness opportunity strategies। In step number 7, an organization used to go for matching internal strengths with the external threats and record the resultant ST यानी कि strength threat strategies।
In step number 8, that organization used to go for the match in internal weakness, match of internal weakness with the external threat of the environment and record the resultant weakness threat strategies, dear students. अब ये जो TOWS matrix है, always remember it is a 9 cell matrix, dear students. Upper left cell of this 9 cell matrix always remains blank. आप हॉरिजेंटल जो आपके इस मैट्रिक्स के 2 सेल्स हैं टॉप वाले, उनमें इंटरनल एनवायरनमेंट के स्टेटस को इनलिस्ट कर देती हैं, जैसा कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रही हैं. आपने ऊपर स्ट्रेंथ ले लिया और वीकनेस ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 सेल आपके इस मैट्रिक्स के हैं, बिहाइंड एंड लोअर टू द टॉप लेफ्ट सेल विच ऑलवेज रिमेन्स ब्लैंक, इसमें आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट्स ले ली, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अब इनका हम मैच करते जाते हैं. पहले मैच में हमारे पास एसओ स्ट्रेटेजीज यानी कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजीज आ गई. ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? Use strength to take advantage of your opportunities. All simple and self-explanatory. दूसरी सूरत हाल में हमारे पास WO यानी कि वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजीज आ गई. ये क्या आपको सूरत हाल सजेस्ट करती है? Overcome weaknesses by taking advantages of your opportunities. अगर हम थर्ड सूरत हाल देखें जिसमें हमारे पास ST strategies आ गई, it guides you to use strengths to avoid threats. And the fourth and final situation, in the name of weakness threat strategies, it advised you in this situation to minimize weakness and avoid the available given existent threats of that organization would have been facing at that time. So dear students, इस स्टेज 2 के जो मैचिंग स्टेज है, इसमें टोज मैट्रिक्स भी है, स्पेस मैट्रिक्स भी है, बीसीजी मैट्रिक्स भी है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स है, और इन मैट्रिसेस में हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन यानी कि स्पेस मैट्रिक्स को अब डिस्कस कर लेते हैं. It is a 4-quadrant framework, dear students, number 1. Then it helps you determine appropriate strategies, whether aggressive or conservative or defensive, or whether you have to come up with your competitive strategies. इस space matrix में 2 internal dimensions will remain in your main focus. यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स आपके फोकस में रहेंगी और आपके पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एज बीइंग अ फर्म अवेलेबल हैं. इन 2 इंटरनल डायमेंशंस के साथ हम 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डायमेंशंस को टेकअप करते हैं. नंबर 1 एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को, कि ये जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रही हैं एज बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, how stable you consider this one. क्या आप इसमें कोई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रेटेजी टेकअप करती हैं, या आप ये समझते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट इन विच चेंजेस वुड हैव बीन हैपनिंग एंड टेकिंग प्लेस एट वेरी स्विफ्ट इंटरवल्स. सेकंड जो हमारा फोकस होता है इस पर्टिकुलर स्पेस मैट्रिक्स में, डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट रिमेन्स ऑन इंडस्ट्री स्ट्रेंथ, कि उस इंडस्ट्री में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है. This tells you, this space matrix then further tells you overall strategic position of the firm determined by the financial strength, competitive advantage, environmental stability and industry strengths, as we have discussed this a minute ago. For the development of this space matrix, dear students, you have to use your EFE matrix, यानी कि external factor evaluation matrix, then internal factor evaluation matrix, financial strength, competitive advantage, environmental stability and industry strength. Dear students,
This will take you to the next step of the space matrix, which tells you to select variables to define your financial strength, your CA as being an organization, then ES, environmental stability, and then IS, which we have discussed before. In next step, you have to assign numerical rankings from +1, which shows that it is a worst scenario, to +6, which would be your best choice. For FS and IS, assign numerical ranking from -1, best, to -6 for worst for environmental stability, and for CA, which we have discussed before. It will then in next step provide you with the compute average score for FS, CA, ES and IS, dear students. This space matrix actually plot the average scores on the matrix, dear students. Then add the two scores on the x-axis and plot point on x. Add the scores on the y-axis and plot y. Plot the intersection of the new xy point, then draw a directional vector from origin through the new intersection point, dear students. This is how this space matrix would have been providing you with some meaningful value at the end. Now, as far as our previous concept of bringing or making a match between internal environment of an organization and the indicators of the external environment of an organization, ये space matrix में हमने कैसे किया? इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ्स को और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंटरनल वाले एस्पेक्ट में, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है. इनमें क्या क्या चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. इसको हम मैच कर सकते हैं ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ. इंटरनल में लीवरेज है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पोजीशन से है, लिक्विडिटी है, डिमांड वेरिएबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल could be matched with the price range of competing products. Then cash flows internal environment से है, barriers to entry external environment का strategic position का factor हो सकता है, ease to exit और ease of exit from market internal position है, external environment competitive pressure आप पे होता है, internal environment में आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस को टेक अप करने की कैपेसिटी होती है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फैक्टर होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप टेक अप करती हैं. इसी तरह सीए में यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आपके पास इंटरनल साइड पे मार्केट शेयर आ जाता है, प्रोडक्ट क्वालिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज गिवन टू बी योर इंटरनल स्टेटस, कस्टमर लॉयल्टी वुड बी योर इंटरनल स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिशंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देन अनदर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक इंटरनल स्ट्रेंथ है. कंट्रोल ओवर सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर है तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इंटरनल स्ट्रेंथ है. डियर स्टूडेंट्स, हम इसे एक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ यानी कि आईएस के साथ मैच करते हैं. इंडस्ट्री स्ट्रेंथ में हमारे पास ग्रोथ पोटेंशियल कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट पोटेंशियल कितना अवेलेबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्या सूरत हाल है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की क्या स्टेटस और सूरत हाल है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के क्या क्या पहलू आपके सामने हैं, कैपिटल इंटेंसिफाई किस तरह आप करती हैं, ईज ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट
So dear students, on the part of the external strategic position, हमारे पास एक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ जो आती है IS की फॉर्म में, हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल आ जाता है, प्रॉफिट पोटेंशियल इज देयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज देयर, technological know-how would be the other aspect, resource utilization is an important aspect, then capital intensifying is another aspect, ease to entry into the market would be another aspect, and then productivity and capacity utilization would be another factor which will make a meaningful justification for you. ये जो particular slide आप अभी देख रहे हैं, ये इसके next step में आपके लिए बहुत simple judgment decide कर देती है कि अगर आपके पास ये सूरत हाल, ये scores इस तरह available हैं, तो whether you have to go for the aggressive group of strategies or conservative strategy, or you might have to approach any defensive strategy, or even you might have to go for some competitive strategy. So dear students, हम जब अपनी इस सेकंड स्टेज की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास IE मैट्रिक्स भी अवेलेबल है, BCG मैट्रिक्स भी अवेलेबल है, टोज और स्पेस मैट्रिक्स की स्टडी आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, एंड हमारे पास फाइनली ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स भी अवेलेबल है. This BCG matrix, which stands for Boston Consulting Group Matrix, it is meant for enhancement of multi-divisional firms' efforts to formulate strategies actually. और इसमें क्या एक benefit होता है, autonomous divisions or profit centers of the organization constitutes the business portfolios of that organizations. Firms division may compete in different industries requiring separate strategies. कि अगर आपकी फर्म के डिफरेंट डिवीजन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में compete कर रही हैं तो नेचुरली आपको उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है. दिस बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स graphically portrays differences among divisions and it focuses on market share position and industry growth rate. ये इसकी बेसिक फाउंडेशन होती हैं, मार्केट ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, और इसमें आपका मार्केट शेयर एज अ बिजनेस फर्म कितना है. इट हेल्प्स यू मैनेज बिजनेस पोर्टफोलियोज थ्रू रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हम रिलेटिव मार्केट शेयर पोजीशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, जो कि बेसिस है हमारे BCG मैट्रिक्स के. इट इज लाइक दिस: रेशियो ऑफ अ डिवीजन्स ओन मार्केट शेयर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू द मार्केट शेयर हेल्ड बाय द लार्जेस्ट राइवल फर्म इन दैट इंडस्ट्री. एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो BCG मैट्रिक्स है, इट हैज दोज 4 क्वाड्रेंट्स और दोज 4 सेल्स. हमारा जो राइट हैंड पे अपर सेल है, इट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ क्वेश्चन मार्क. देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपर सेल है, वी कॉल इट और वो गिव इट द नेम ऑफ स्टार्स. Then third one is cash cows and the fourth one is available with the title of dogs. इनमें क्या होता है, अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन मार्क्स को, स्टार को, कैश काउस को, डॉग्स को. क्वेश्चन मार्क डियर स्टूडेंट्स, इट इज दैट डिवीजन ऑफ अ फर्म with low relative market share position but yet it is competing in high growth industry. इसमें cash needs always remains high, case generation is low and decision through strengthen यानी कि intensive strategies और divestiture आपका usual decision आता है. Stars का जो डिवीजन है, ये हाई रिलेटिव मार्केट शेयर एंड हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट होता है. उसकी बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं. बेस्ट लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को ये डिटरमिन करता है. इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो फॉर द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट
टू मेंटेन और स्ट्रेंथन योर डोमिनेंट पोजीशन, जो कि आप इंटीग्रेशन ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज के थ्रू कर सकते हैं, इंटेंसिव ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज के थ्रू भी कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कैश काउज, high relative market share position but compete in a low growth industry, generate cash in excess of its own needs. Actually, this is why we call it cash cows. Milked for other purposes, यानी कि इस डिवीजन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उन डिवीजन्स को भी फीड किया जा सकता है जिनकी कैश की रिक्वायरमेंट बड़ी विजिबल होती है। It suggests you to maintain strong position as long as possible for you. How could you do that? Through product development strategies, through concentric diversification, and if you becomes weak, retrenchment or divestiture will become your choice of strategy in that particular situation. ये dogs का क्या justification है? Dear students, dog हम BCG मैट्रिक्स के गिवन डिवीजन्स में से उस डिवीजन को टेकअप करते हैं which used to have low relative market share position and competes in a slow or no market growth industry. वीक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोजीशन है, दोनों फ्रंट पे आपके पास यू फाइंड नो होप। और इसमें यूजुअली क्या होता है, इट गाइड्स यू टू गो डिसाइड फॉर द लिक्विडेशन आफ्टर डाइवेस्टिचर एंड रिट्रेंचमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेज 2 है जो कि मैचिंग स्टेज के टाइटल से अवेलेबल है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स IE के टाइटल से अवेलेबल है, इन विच वी वुड हैव बीन नॉट ओनली डिस्कसिंग द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट IE मैट्रिक्स in our next meeting inshallah. This IE matrix is available with the title of internal external matrix. इसमें जिस तरह हमने अपने BCG मैट्रिक्स में, स्पेस मैट्रिक्स में, टोस मैट्रिक्स में, ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स हमने अभी करना है, उसमें भी हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमने आइडेंटिफाई की थी, उनका हम मैच करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी थी, मैंने आपको आज मैट्रिसेस स्टडी कराए हैं और ये मैट्रिसेस हमने किस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी किए हैं कि हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड चॉइस किस तरह की जाती है, ये कौन सी स्ट्रेटजीज का एनालिसिस हमने करना है जिनकी बेसिस पे हम अपनी फाइनल चॉइस डेवलप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में स्ट्रेटजीज इन एक्शन, बल्कि उसको हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया था, जिसमें हमारे पास 9 ग्रोथ स्ट्रेटजीज अवेलेबल हो गई थी और जिसमें हमारे पास 4 डिफेंसिव स्ट्रेटजीज अवेलेबल हो गई थी, जो कि मैंने आपको बताया था माइकल पोर्टर्स की 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज की वो प्रोडक्ट हैं। माइकल पोर्टर की जो 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देवर available with the title of cost leadership strategy, differentiation strategy and focus strategy. उन स्ट्रेटजीज के बारे में उनकी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए जब हमने उनसे अच्छी फेमिलियरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी थी, तो आज के लेक्चर के पहले पार्ट में हमने स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस की नेचर को डिस्कस किया और उसकी बेसिस पे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटजी जनरेशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन को डिस्कस किया। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, एज द टाइटल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कॉम्प्रिहेंसिव किस चीज का नाम है? Any something which has been given in complete detail, we call it a comprehensive phenomena. यानी कि जामे और मुफस्सल चीज जब दी गई होती है। This comprehensive framework for strategy analysis
and evaluation on the basis of which you have to make the final choice of your strategy was a phenomena of 3 stages. We gave the 3 titles to those 3 stages of this particular framework. इस particular framework की पहली स्टेज को हमने टाइटल दे दिया था इनपुट स्टेज का, सेकंड स्टेज को हमने टाइटल दिया मैचिंग स्टेज का, और इस फ्रेमवर्क की जो थर्ड और फाइनल स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, इट इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ डिसीजन स्टेज। इनपुट स्टेज जो कि पहली स्टेज थी, जैसा कि टाइटल भी हमें सजेस्ट करता है कि इनपुट उस चीज का नाम है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजी जनरेशन, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन में हमारे पास क्या चीज इनपुट के तौर पे अवेलेबल थी डियर स्टूडेंट्स? 3 frameworks in the form of 3 matrices which we have performed as the final product of the study of the internal environment of the organization and as a result of the study of the external environment of that organization. इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी हमने इंटरनल असेसमेंट के टाइटल से की थी, और उस इंटरनल असेसमेंट को हमने फाइनली इंटरनल ऑडिट में कन्वर्ट करना था डियर स्टूडेंट्स। इस इंटरनल ऑडिट की कन्वर्जन हमारी जाके कहाँ मैच्योर हुई थी? जब हमने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को परफॉर्म किया था, जो कि 5 स्टेप्स का एक मैट्रिक्स है, जिसका स्टेप नंबर 1 की इंटरनल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के टाइटल से अवेलेबल है, जिसका सेकंड स्टेप वेटेजेस के टाइटल से अवेलेबल है, थर्ड स्टेप जिसका रेटिंग्स के टाइटल से अवेलेबल था, फोर्थ स्टेप इसका वेटेड स्कोर के टाइटल से अवेलेबल था, और फिफ्थ स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी समेशन यानी कि फोर्थ स्टेप के वेटेड स्कोर की समेशन लेके सम वेटेड स्कोर ले लिया था। ये हमारा इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स था जो इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में एज एन इनपुट यूज हुआ। जिस तरह हमने इंटरनल एनवायरनमेंट से ये इनपुट यूज की थी, इसी तरह एक्सटर्नल असेसमेंट की बेसिस पे जो हमने एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म किया था अपने प्रीवियस चैप्टर्स और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अवेलेबल हो गया था, जो IFE मैट्रिक्स वाले ही सेम 5 स्टेप्स पे बेस कर रहा था। इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है डियर स्टूडेंट्स IFE और EFE मैट्रिक्स में। IFE मैट्रिक्स के पहले स्टेप में हम स्ट्रेंथ्स को पहले और बाद में वीकनेसेस को एनालिस्ट करते हैं। बाकी सारे स्टेप्स IFE और EFE के सेम हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप ऑफ EFE IFE से इस तरह फर्क है कि इसके पहले स्टेप में हम अपनी विजिबल अपॉर्चुनिटीज को पहले और उसके बाद उसी लाइन में अपने गिवन थ्रेट्स को एनालिस्ट कर लेते हैं। जब ये हमने कंप्लीट किया था तो इसी की कंटिन्यूटी में, चूंकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल ऑडिट को डिस्कस कर रहे थे, और आपको पता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर ऑलवेज बी देयर। कंपटीशन को सामने रखते हुए हमने CPM भी परफॉर्म किया था। CPM स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, और मुझे खुशी होगी अगर यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि ये जो CPM है ये प्रोडक्ट थी माइकल पोर्टर्स के 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की, जो हमने अपने एक्सटर्नल असेसमेंट और एक्सटर्नल ऑडिट वाले चैप्टर में यूज किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मैट्रिसेस यानी कि IFE मैट्रिक्स, EFE मैट्रिक्स और CPM हमारी इस स्टडी में यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजी जनरेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन या सिलेक्शन के कंपोनेंट की पहली स्टेज है।
सेकंड स्टेज हमारे पास मैचिंग स्टेज के टाइटल से अवेलेबल थी, जो आज हमने डिस्कस उसका कुछ हिस्सा कर लिया। मैचिंग स्टेज के टाइटल की आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द जस्टिफिकेशन व्हाई वी हैव गिवन इट दिस टाइटल, कि इसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्चुअली मैच करते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच करने से मेरी क्या मुराद है, यानी कि जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे आप अपनी फर्म की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ इस तरह की मैचिंग करते हैं कि जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को यूज करते हुए कैपिटलाइज कर सकें, और सेकंड स्टेज पे इन्हीं स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करें एज ए शील्ड अगेंस्ट द थ्रेट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच मे डैमेज योर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेटस। इस मैचिंग में हमारे पास 5 मैट्रिसेस अवेलेबल हैं: टोज मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, स्पेस मैट्रिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। इन तमाम मैट्रिसेस ऑफ मैचिंग स्टेज में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक क्वांटिफिएबल मैचिंग कराई गई है, which will help you a lot in coming up with the strong foundation to pursue the third stage of this comprehensive framework for strategy generation, analysis and selection। और इस comprehensive framework की थर्ड स्टेज का टाइटल है द डिसीजन स्टेज। हमने आज अपनी मैचिंग स्टेज के कुछ मैट्रिसेस की स्टडी कंप्लीट कर ली। इसकी बेसिस पे जो हमारा 1 या 2 इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स फ्रॉम सेकंड स्टेज रह गई हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहले उनकी स्टडी कंप्लीट करेंगे और फिर इन 2 स्टेजेस की बेसिस पे वी विल इंशाल्लाह बी एबल to discuss the third stage of this comprehensive framework which is available with the title of decision stage। और तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस decision stage में we are having one more matrix to be studied and discussed by us, and that matrix of decision stage is available with the title of QSPM। This QSPM stands for Quantitative Strategic Planning Matrix। Dear students, inshallah in our next meeting we will try to discuss this matrix in complete detail to make you how an organization finally select a strategy which it has to pursue for the achievement of its long-term objectives। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने माशरे में जो ज़ईफ़ और कमज़ोर और बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको ख़ास अहमियत दें। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।